So, welcome back everyone to our YouTube channel Sai Academy, where we take classes related to psychology for exams like UGC NET, CUET PG as well as 11th-12th boards. सबका स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से, जिसका नाम है साई एकेडमी, जिसमें हम क्लासेस लेते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे यूजीसी नेट, सीयूईटी पीजी और इवन जो 11th-12th के बोर्ड्स हैं। ये जो हमारा क्लास है ये हमारा 6th पार्ट है सोशल साइकोलॉजी के सीरीज़ में। इसका नाम है सोशल इंटरैक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी क्या धारणा बनती है लोगों के बारे में, हम क्या सोचते हैं उनके बारे में, और हमारी जो सोच है वो क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और क्या हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो हम उसको कैसे चेंज करें। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे आज के सोशल इंटरैक्शन के क्लास में। So in today's class, which is the 6th part of our social psychology series, we'll study about social interaction, where we'll get to know about the different beliefs that we form unintentionally, usually unconsciously, about certain groups, certain people, what kind of beliefs they are, positive or negative, if we do need to change those beliefs, and if we do, how can we do that. So we are going to learn about these things in today's class. So we will start with 3 important concepts that come under social interaction, that are usually students, they are usually not clear between the exact difference between these, so they might get confused, but these are different terms that are related to each other. So we will try to understand them individually, and then through an example we'll understand how they are related or different. So अभी हम 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे सोशल इंटरैक्शन के अंडर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें अक्सर लोगों को, स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है उनका डिफरेंस समझने में, तो इसलिए हम इनको एक बार एक साथ पढ़ लेंगे, फिर उनका डिफरेंस समझेंगे और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे ये रिलेटेड है आपस में। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट वील स्टडी इज स्टीरियोटाइप। हमारा पहला पॉइंट है स्टीरियोटाइप, जिसको हिंदी में बोलते हैं रूढ़ धारणा। What are stereotypes? So stereotypes are fixed beliefs which are formed because certain individual, they belong to certain group. Now, so stereotypes are some fixed beliefs or assumptions that we make about individuals just because they belong to certain groups. Now when we talk about groups, they could be anything. Let's say some individual belongs to certain country, certain culture, maybe they belong to the LGBTQ plus community, so it could be anything. So just because they belong to the group, we forget that they might have some unique qualities of their own, and then we form certain beliefs about them. Now another important point is that these can be positive or negative. So stereotypes can be positive or negative. तो जो रूढ़ धारणा है, इसमें हम एक किसी इंसान के बारे में एक धारणा बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं हमें धारणा? क्योंकि वो इंसान एक किसी सर्टेन ग्रुप को, एक किसी समूह को बिलोंग करता है, एक समूह से आता है, इसीलिए हम ये भूल जाते हैं कि उसका एक अपना खुद का व्यक्तित्व है, यूनिक कुछ उसकी क्वालिटीज़ हैं, ये हम भूल जाते हैं और हम एक धारणा उनके बारे में बना लेते हैं। तो ये जो ग्रुप हम बोल रहे हैं, जो समूह बोल रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है। मे बी वो एक किसी
एक पर्टिकुलर देश से आता हो या वो किसी कल्चर से आता हो, डिपेंड करता है, मे बी वो एशियन है, अमेरिकन है, यूरोपियन है, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे जो ग्रुप्स को, किसी भी ग्रुप को वो बिलोंग करता है, इसीलिए हम उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं। और अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्टीरियोटाइप से जरूर धारणा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। So this is about stereotypes. Now we'll understand it better through example further. Next we'll talk about prejudice. जो prejudice है उसको हम हिंदी में पूर्वाग्रह भी बोलते हैं। तो prejudice में what we see is that a negative attitude forms about the certain individual because they belong to a certain group. So this happens not always, but usually it happens when when there is a group that we are not familiar with. So this is prejudice. तो जो पूर्वाग्रह है, prejudice है, इसमें एक नकारात्मक नज़रिया बन जाता है हमारा एक इंसान के प्रति, एक किसी इंडिविजुअल के प्रति, क्योंकि वो एक सर्टेन समूह को, किसी समूह को बिलोंग करता है। तो ये हमारा प्रेजुडिस है। थर्ड हमारा हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन। Our third point is discrimination. So in discrimination, जिसको हम हिंदी में भेदभाव भी बोलते हैं, in discrimination we see that people actually act on their prejudiced attitude. That is, they perform some negative behavior और दे मिसट्रीट समवन। सो डिस्क्रिमिनेशन में जो भेदभाव है उसमें जो हमारा प्रेजुडिस में हमारा एक नेगेटिव एटीट्यूड, एक नकारात्मक नज़रिया जो बन चुका है, अब उस पर हम एक्ट करते हैं। अब हम एक नेगेटिव, एक नकारात्मक बिहेवियर दिखाते हैं, एक ऐसा एक्ट दिखाते हैं जो हमारे नेगेटिव जो व्यू एटीट्यूड बन गया है उस पर बेस करके हम एक ऐसा कुछ काम करते हैं जो हम लोगों से अच्छा बिहेव नहीं करते, उनमें भेदभाव करते हैं, आपने सुना ही होगा। तो दैट इज़ बेस्ड ऑन, यूजुअली बेस्ड ऑन अ नेगेटिव एटीट्यूड। सो दिस इज आर 3 points. Now one important thing here is the stereotype is based on cognition, or it is basically the cognition part. Because here some beliefs are formed, you make some certain assumptions about certain group which could be positive or negative. But when it comes to prejudice, it's not only negative, नकारात्मक है ये, पॉजिटिव नहीं होता है, but also इसमें emotions इन्वॉल्व होते हैं, और emotions का एक और वर्ड है affect. So another word for emotions is affect, and that is what emotions, जो भावनाएं हैं हमारी, वो इन्वॉल्व होती हैं prejudice में। फाइनली अगर हम देखें डिस्क्रिमिनेशन में, इसमें हम देखते हैं बिहेवियर। तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा इन सब में कि जो स्टीरियोटाइप है उसमें कॉग्निशन इन्वॉल्व्ड है कि हमारा एक बिलीफ फॉर्म होता है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव, या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। प्रेजुडिस में उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप, नॉट ऑलवेज बट इट कुड बी, इसके स्टीरियोटाइप के बाद कभी कभी, हमेशा नहीं, पर जब हमारे इमोशंस उसके साथ जुड़ जाते हैं, एक किसी सेंटिमेंट, एक किसी चीज़ के बारे में, और जब वो नेगेटिव इमोशंस, पर्टिकुलरली जब नेगेटिव इमोशंस हमारे इंड्यूस होते हैं किसी चीज़ के बारे में, जो अफेक्ट है या इमोशंस जिसको बोलते हैं, तो तब वो उसको हम प्रेजुडिस बोलते हैं। और जब हम उन नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एटीट्यूड पे एक्ट करते हैं, एक बिहेवियर दिखाते हैं नेगेटिव, तो वो हमारा डिस्क्रिमिनेशन होगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इनके बीच का डिफरेंस, और ये भी कि ये कैसे एसोसिएटेड हैं।
तो लेट्स से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जेन जी का। तो लेट्स से स्टीरियोटाइप में लेट्स से वी हैव बिलीव दैट द जेन जी, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, इज़ वेरी इररिस्पॉन्सिबल। तो हमारा जो स्टीरियोटाइप है वो ये है कि जो जेन जी है वो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। तो हमारा जो प्रेजुडिस है वो आर प्रेजुडिस वुड बी दैट जेन जी कैन नॉट हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल, सो वेन एवर इट कम्स टू इम्पॉर्टेंट टास्क दे कैन नॉट हैंडल इट वेल। तो जो हमारा प्रेजुडिस है वो जैसे हमारा स्टीरियोटाइप जो नेगेटिव एक था स्टीरियोटाइप कि वो इररिस्पॉन्सिबल है, बट अब हम प्रेजुडिस में मानते हैं कि जो जेन जी है वो किसी भी इम्पॉर्टेंट टास्क को हैंडल नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा प्रेजुडिस है। तो डिस्क्रिमिनेशन में हम फिर क्या देखेंगे कि हम जब हायर करने की बात आएगी, लेट्स से जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो प्रेजुडिस्ड हैं तो वो फिर जेन जी को हायर ही नहीं करेगी, जबकि मे बी उनके पास क्वालिफिकेशंस बहुत हाई हैं, बट फिर भी बिकॉज उनका मानना है कि जेन जी ये रिस्पॉन्सिबल है कि वो कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए उनको हायर ही नहीं किया जाएगा। सो इन डिस्क्रिमिनेशन देन वील सी, लेट्स से देयर आर सर्टन employers who are prejudiced towards Gen Z, then they will not prefer hiring the Gen Z, although maybe they are very highly qualified, still they won't be hired. So this is an example of all these three types of social interaction. Now we'll move on. तो हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमारे सोशल इंटरेक्शन के हैं वो डिस्कस किए, stereotype, prejudice or discrimination. We discussed some basic concepts that come under social interaction. Now we will move on to some theories of intergroup relations. अब हम कुछ theories discuss करेंगे intergroup relations के, which are basically relations between two different groups, कि जब दो groups हैं उनके बीच में किस टाइप का relation बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो अब हम पढ़ेंगे कुछ theories के through. The first theory that we will discuss today is the realistic conflict theory. तो जो सबसे पहला theory हम discuss करेंगे वो है conflict theory. अब इस थ्योरी का एक और नाम है जो कि है रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारी पहली थ्योरी है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। So this theory was given by the study, in fact, was done by Muzaffar Sharif and colleagues and others in the year 1954. So this study was done by Muzaffar Sharif in the year 1954. तो जो पहला हम थ्योरी पढ़ेंगे वो हमारा रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, जिसका एक और नाम है रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट। तो इसको किया गया था मुजफ्फर शरीफ द्वारा इन द ईयर 1954। तो इस थ्योरी को समझने के लिए, इस स्टडी को इनफैक्ट हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द पार्टिसिपेंट्स इन दिस थ्योरी, इन दिस एक्सपेरिमेंट, it was 22 boys aged 11 to 12 years. So 11 से 12 साल के जो कुछ लड़के थे, कुछ नहीं 22 बॉयज़, तो 22 लड़के 11 से 12 साल के इस स्टडी के पार्टिसिपेंट थे।
नाउ शेरिफ एंड कोलीग्स दे मेड श्योर कि द बॉयज़ दे वर फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड्स। तो इन्होंने ध्यान रखा इस चीज़ का, मुजफ्फर शरीफ ने और उनके कोलीग्स ने, कि जो बॉयज़ हैं, जो लड़के जिनको लिया गया है एज पार्टिसिपेंट्स, दैट दे बिलोंग टू सिमिलर बैकग्राउंड्स, कि उनके जिस लेट्स से सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उनका और भी चीज़ें जो उनके बैकग्राउंड को जो डिस्क्राइब करता है वो सिमिलर हो, वो उनमें बहुत डिफरेंस ना हो, बिकॉज फिर जो हमारा एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट है वो बहुत कंक्लूसिव नहीं होगा। सो दे मेड श्योर दैट द बैकग्राउंड ऑफ द बॉयज़ वाज सिमिलर, because otherwise the results of the experiment would not be very conclusive, because then you would not know that whether the results are due to the individual differences of the individuals of the boys or because of the experiment। तो क्योंकि समझना मुश्किल हो जाता है कि अगर सब लड़के अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, सोशियो इकोनॉमिक या अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से हैं, तो ये समझना मुश्किल हो जाता कि क्या जो रिज़ल्ट आया है क्या वो उनकी बैकग्राउंड की वजह से आया है या जो एक्सपेरिमेंट की वजह से आया है। तो इट वॉज मेड श्योर दैट दे वर फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड्स। So this was not a very important point, but it's important. It's an important point when you conduct an experiment. So we need to know this. Now these are our participants. Now if we talk about the setting of this experiment, now it was conducted. So the boys were taken to a summer camp. ऐसा उनको बताया गया कि उनको एक समर कैंप में ले जाया जा रहा है। नाउ द समर कैंप इट टुक प्लेस इन, एज द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज रॉबर्स केव स्टेट पार्क में इस एक्सपेरिमेंट को एज ए समर कैंप दिखाया गया। और ये जो समर कैंप कंडक्ट कराया गया दैट वाज कंडक्टेड इन द रॉबर्स केव स्टेट पार्क विच इज सिचुएटेड इन अ स्टेट इन USA कॉल्ड ओक्लाहोमा। सो नाउ we need to know one important point is that the boys, they were divided into two groups. So we have 22 boys here. So these 22 boys, they were divided into two groups, that is 11 boys in each group. Now these 22 boys, जो 22 लड़के थे, उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, 11 बॉयज़ ईच ग्रुप में डाला गया। और फिर जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसे कंडक्ट कराया गया। नाउ जो दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, वन पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज़ दैट द बॉयज़ डिड नॉट नो कि उनके ग्रुप के अलावा भी कोई और ग्रुप है। तो these boys, they did not know, so they were divided into two groups, and the two groups were not aware of the presence of the other. Each of them was not aware of the presence of the other group. So now we will study how the experiment was conducted in 3 different phases. One mistake I made is that I said that the realistic conflict theory is also known as the Roberts Cave experiment, but actually what we are discussing right now is the Roberts Cave experiment. Now this supported the realistic conflict theory. It helped building up, it supported the realistic conflict theory, but they are not the same thing. तो एक मुझसे गलती हुई कि जो रॉबर्स, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो पार्टिसिपेंट्स के बारे में हमने बात की, सेटिंग के बारे में, तो वो हमारा रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट है, जो कि मे बी ऑब्वियस है बट स्टिल आई वुड लाइक टू मेंशन। तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट है, और अब हम जब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर लेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस एक्सपेरिमेंट ने सपोर्ट किया रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को। सो नाउ वी विल कंटिन्यू the third part that we'll discuss now. After discussing the participants and the setting, we'll talk about the 3 phases that this entire experiment was divided into. अब हम बात करेंगे किन 3 पार्ट्स में कैसे एक के बाद एक इस एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट किया गया, कंडक्ट कराया गया। Now we will talk about the 3 phases of how the experiment was actually conducted. तो अब हम उन 3 पार्ट्स की बात करेंगे कैसे इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया। तो हमारे फर्स्ट फेज में हुआ था ग्रुप
फॉर्मेशन। ये है हमारा फर्स्ट फेज, ग्रुप फॉर्मेशन। इसमें द फोकस वॉज ऑन एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन विद इन द ग्रुप इट्सेल्फ। तो जैसे हमने पहले बात की कि जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो दो ग्रुप में डिवाइड हुए थे, ईच ग्रुप हैड नो आइडिया दैट देयर वाज अनदर ग्रुप दैट एग्जिस्टेड। दोनों ग्रुप्स को आइडिया नहीं था कि एक और ग्रुप, उनके अलावा एक और ग्रुप है। तो फर्स्ट फेज में फोकस था कि जो ग्रुप है, ईच ग्रुप, तो दो ग्रुप्स में डिवाइड हुए थे, हो गए थे बच्चे इवेंचुअली, द ईगल्स एंड द रैटलर्स। तो इन दो ग्रुप्स में बच्चे डिवाइड हो गए थे। तो ईगल्स में भी 11 बच्चे और इसमें भी 11 बच्चे। सो इन दोनों ग्रुप्स को अलग अलग टाइम दिया गया। दे स्पेंड टाइम विद द ग्रुप मेंबर्स। जैसे ईगल्स जो थे वो अपना अलग एक्टिविटीज़ कर रहे थे, अपने में ग्रुप कोहेशन बढ़ा रहे थे, अपने रिलेशंस बेटर उनके हो रहे थे, वो लोग गेम्स खेलते थे। वैसे रैटलर्स भी आपस में अपना गेम्स खेलते थे। तो उसमें ग्रुप के अंदर जो है इंट्रा ग्रुप जो उनका रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव करने के लिए ऐसे गेम्स कंडक्ट कराए गए ग्रुप फॉर्मेशन में। So in our group formation we saw that some games were made to play, the groups, they were individually, the eagles, the rattlers, they were individually, they were made to play games. Let's say the eagles they played, let's say, baseball, football, whatever they wanted to. So they played some certain games, they spent some time together, and then the intra group relations, to build those relations, these games were made to play. And so group cohesion developed, and they also, while they spent time together, they also formed group norms. So they became a group. They actually became a group properly in the first 5 to 6 days. So this is what happened in the group formation phase. So the groups formed intra-group relations, the rattlers and the eagles. Now the second phase would be inter-group conflict. In the second phase we see intra-group. So in the first group in the first phase we saw intra-group relations were built. Now in the second phase we see inter-group conflicts arise. So जो फर्स्ट ग्रुप में हमने देखा इंट्रा यानी कि ग्रुप के अंदर, बट इंटर में अब हम दोनों ग्रुप्स के बीच में इंटरेक्शन की बात करेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट ऐसे हुआ कि दोनों ग्रुप्स में कंपटीशन क्रिएट किया गया। तो अब जैसे कुछ टग ऑफ वॉर जैसे कुछ गेम्स खिलाए गए, तो अब दोनों ग्रुप्स को जब खिलाया जा रहा था तो एक सेंस ऑफ एनिमिटी उनमें आ गया था, एक हॉस्टिलिटी आ गया था। एक दूसरे को वो एज थ्रेट्स देखने लगे थे, बिकॉज गेम्स जो जीत रहा था उसको रिवॉर्ड्स मिलते थे, ट्रॉफीज़ मिलती थी, इनफैक्ट पॉकेट नाइफ भी मिला था। तो ऐसी चीज़ें जब रिवॉर्ड्स मिलने लगी थी तो एक सेंस ऑफ एनिमिटी, एक सेंस ऑफ कंपटीशन क्रिएट होने लगा था। कंपटीशन लेड टू एनिमिटी और हॉस्टिलिटी आई वुड से, और एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था दोनों ग्रुप्स के बीच में। So in group formation we saw the focus was on group cohesion, forming intra-group relations. But in the intergroup conflict we see competition. Competitions were held, let's say games like tug of war was played between the two groups. So and the winners were given trophies and even pocket knives. So since rewards were given, a sense of competition eventually led to a sense of hostility towards the other group. There was a threat that they felt, one group felt for the other, against the other. So there was competition, there was a sense of hostility, which led to things like name calling, stealing each other's flags,
and they grew aggressive. So all these things, they happened as a result of the hostility that developed due to the competition that was formed and the rewards that were given. तो क्योंकि एक नफ़रत का माहौल बन जा रहा था दोनों ग्रुप्स के बीच में, बिकॉज जो विनर था उनको रिवॉर्ड्स मिल रहे थे, तो इसलिए नेम कॉलिंग यानी कि कुछ कुछ ख़राब नाम से या डीमीनिंग बुरे बुरे नाम से बुलाना एक दूसरे को, तो नेम कॉलिंग देखा जा रहा था। फिर एक दूसरे के जो फ्लैग्स थे, रैटलर्स और ईगल्स के अपने अपने फ्लैग्स थे, तो फ्लैग को चुराना, तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत अग्रेसिव माहौल बन चुका था। ये हम देखते हैं हमारे सेकेंड फेज़ में। नाउ जब हम अब थर्ड फेज़ देखेंगे, थर्ड फेज़ में हम देखते हैं देयर इज़ focus on reducing the conflict. So जो लास्ट के 4, 5, 6, 7 दिन थे, उसमें फोकस था कि कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करें। तो उसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जिसने, वो होगा हमारे सब ऑर्डिनेट गोल्स। Now what are subordinate goals? They are goals, so here the third phase focused on reducing the conflict that was already created. So this was possible because of subordinate goals. Now these are goals which individuals cannot perform all on their own. They require the involvement of all the parties. तो जैसे ये सबऑर्डिनेट गोल्स ऐसे गोल्स हैं, ऐसे एम्स हैं जो आप अकेले नहीं अचीव कर सकते, आपको जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सबकी हेल्प चाहिए इसको अचीव करने के लिए। तो सबऑर्डिनेट गोल्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए एक्सपेरिमेंटर द्वारा, जैसे कि जो एक ट्रक था जिसमें उनका खाना था पूरे कैंप का, पूरे ग्रुप का, सबका, तो जिसमें उनका खाना था, ऐसे ट्रक में वो एक फंस गया था, वो ट्रक मड में, कीचड़ में फंस गया था, तो उसको साथ में मिलके निकालना। फिर ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम था, सो देयर वाज प्रॉब्लम रिलेटेड टू देयर वाज अ ट्रक दैट कैरीड द फूड, सो यू नो इट वाज स्टक इन द मड, सो टेकिंग द trying to take the truck out of the mud, and there was drinking water problem कि उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया था, पीने के पानी में उनको नहीं रिसीव हो रहा था, तो उसको सॉल्व करने के लिए तो कुछ प्रॉब्लम था। यू कैन रीड ऑन इट फर्दर। सो मेन पॉइंट है कि जब खाने पे और उनके पानी पीने पे इन सब में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो सब साथ में आए, और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अकेले सॉल्व करें, तो मोर द बेटर। तो सब मिलके सबने ब्रेनस्टॉर्म किया, फाइंड आउट किया कि कैसे सॉल्व हो सकता है। तो जब दोनों ग्रुप्स ने मिलके कोशिश की सबऑर्डिनेट गोल्स को, इन गोल्स को अचीव करने की, सो दे वर एबल टू, और उस दौरान जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया, दैट हेल्प रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। तो नाउ जैसे यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं कि जो ये सिचुएशंस क्रिएट किए गए, जिसमें जैसे कि पानी का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम, ट्रक वाला प्रॉब्लम, तो उसमें ये ऐसी सिचुएशंस है जिसमें दोनों ग्रुप्स, जो ईगल्स थे और जो रैटलर्स थे, दोनों सेम लेवल पे थे। they had equal status, the eagles and the rattlers, when it comes to such problems related to drinking water and food. So they were in equal status, that nobody had an upper hand, किसी का upper hand नहीं था, कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं था, दोनों इक्वली क्लूलेस थे कि कैसे सॉल्व करें, और दोनों ने मिल के फिर ब्रेनस्टॉर्म किया, सॉल्व किया। तो ऐसे सिचुएशन जिसमें कोई किसी का अपर हैंड नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं जानता, कम नहीं जानता, तो इक्वली क्लूलेस हैं वो, इक्वली दे गिव देयर एफर्ट्स, तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट हाइपोथीसिस। एक्चुअली ऐसे सिचुएशन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ऐसे सिचुएशन को जब आप हैंडल करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने से आपका जो प्रेजुडिस है, जो डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं, जो आपका प्रेजुडिस, जो नेगेटिव एटीट्यूड्स बन रहे हैं, वो सॉल्व होते हैं। दोनों इक्वली पावरलेस हैं, इक्वली क्लूलेस हैं, और साथ में मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और क्योंकि वो साथ में मिलके सॉल्व कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए उनके बीच का जो प्रेजुडिस है वो कम हो जाता है। तो इस पूरी चीज़ को दिस इक्वल स्टेटस फिनोमेना यू कैन कॉल, so this is called our
contact hypothesis. This is also a very important term in this experiment. तो ये हमारे 3 phases हो गए. पहले ग्रुप फॉर्मेशन, फिर अगले के 5-6 दिनों में एक इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और फाइनली वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिड्यूस होता है. तो ये देखा गया था हमारे रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट में. नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ दिस हेल्प्ड, how this supported the realistic conflict theory. Now the realistic conflict theory, it argues, it believes that an intergroup conflict, that conflict between groups could arise whenever there is a competition between 2 groups. Now this competition could be for some goods, some maybe for social status or for power. तो जो हमारा रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थियरी है, इसमें ऐसा माना जाता है कि जब भी कंपटीशन होता है किसी चीज़ के लिए, किसी रिसोर्सेज के लिए, कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि या रिसोर्सेज इन जनरल, जैसे कि मे बी सोशल स्टेटस के लिए, पावर के लिए, सत्ता के लिए फॉर एग्जांपल, या फिर कोई छोटी मोटी चीज़ के लिए. तो जब भी कंपटीशन होता है तब एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है 2 ग्रुप्स के बीच में. तो और ये दिस थ्योरी इज सपोर्टेड बाय द रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट. तो उस एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ा अभी रॉबर्स केव का, वो इस थ्योरी को सपोर्ट करता है. तो अगर हम देखें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस थ्योरी में आते हैं, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा resource scarcity and competition. तो जब किसी चीज़ का लिमिटेड अमाउंट रहता है, लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं कि वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, whenever some resource is limited, is scarce, तो एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता है उस चीज़ के लिए, and that competition then leads to hostility. It leads to hostility. तो इससे एक नफ़रत की भावना बन जाती है. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है. इसके बाद हम देखते हैं, तो ये जो कंपटीशन की भावना है, इससे एक और चीज़ आती है, वो है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. और बेसिकली हम कह सकते हैं इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप में ही कंपटीशन होता है. तो इसमें क्या होता है, इन ग्रुप आउट ग्रुप में हमारा अस वर्सेस देम का कॉन्सेप्ट बन जाता है, जहाँ अस हमारा इन ग्रुप हो जाता है और हमारा देम आउट ग्रुप हो जाता है. तो इसमें एक कंपटीशन जो बन जाता है फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, दैट आल्सो लीड्स टू अ फीलिंग ऑफ इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप, यानी कि अस वर्सेस देम, जिसमें एक सेंस ऑफ प्रेजुडिस क्रिएट हो जाता है. नाउ द थर्ड पॉइंट वुड बी अंडर दिस थ्योरी इज, सो थर्ड पॉइंट हमारा है सुपर ऑर्डिनेट गोल्स. नाउ यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी. Earlier in the third phase of the Robbers Cave experiment, जो experiment था उसका जो third phase था, उसमें I made a mistake. That was not subordinate, that would also be superordinate goal. Subordinate goal is basically something that you do to reach your superordinate goals. The steps that you take to reach your superordinate goals is a subordinate goal, but that is not important here. So do make a correction there. So in the third phase, what was used was superordinate goals. You know, taking the truck out of the mud, और जो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम का वो जो ड्रिंकिंग पानी का जो समस्या था, सॉरी, तो वो सब सुपरऑर्डिनेट गोल से, सबऑर्डिनेट नहीं. तो इस थ्योरी में जो थर्ड पॉइंट है वो हम देखते हैं सुपरऑर्डिनेट गोल्स, जो हमें हेल्प करते हैं टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट दैट वाज क्रिएटेड. सुपरऑर्डिनेट गोल्स में वी सी कोऑपरेशन फॉर या ऑन shared goals,
goals that cannot be achieved alone, that you need the participation of the other parties involved, and such goals can help reduce the conflict that has arisen. तो ये 3 points, important points हैं that come under the realistic conflict theory. So now we'll move on to our next theory. Now we will talk about the second theory of intergroup relations. तो अब हम दूसरे theory की हमारी बात करेंगे जिसका नाम है social identity theory. Now ये theory दी गई थी by Henry Tajfel and John Turner के द्वारा in the 1970s. तो हेनरी ताजफेल एंड जॉन टर्नर ने ये थ्योरी दी थी 1970s में, हमारी सोशल आइडेंटिटी थ्योरी. तो इस थ्योरी का मानना है कि हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो फॉर्म्स आर सेल्फ कॉन्सेप्ट, इट फॉर्म्स बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप. हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो हमारे बारे में क्या सोच है, क्या हम मानते हैं खुद को, क्या सोचते हैं अपने बारे में, तो उसका एक पार्ट इस चीज़ से भी डिसाइड होता है कि हम किस ग्रुप के मेंबर हैं. सो अ पार्ट ऑफ आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉर्म्स ड्यू टू the kind of group that we are members of, or our group membership also decides a part of what our self concept is. This is what was believed by the social identity theory. Now this theory consists of 3 stages. So our first stage is social categorization, followed by our second stage, that is social identification, and finally we have our social comparison. So these are the 3 stages that are part of our social identity theory. Alright, so first we'll start with the social categorization. Social categorization में we see that or we basically classify ourselves or others into different groups, into different categories. तो सोशल कैटेगराइजेशन में हम लोगों को क्लासीफाई कर देते हैं अलग अलग कैटेगरीज़ में बेस्ड ऑन लेट्स से रेस, जेंडर, नेशनैलिटी की वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस रेस से बिलोंग करते हैं, जात पात, जेंडर, अलग अलग चीज़ से हम अकॉर्डिंगली क्लासीफाई कर देते हैं खुद को और दूसरों को भी. तो इससे हमें हेल्प होती है समझने में खुद को और दूसरों को. सो in social categorization we basically divide or classify people to understand them better and even ourselves. तो इसमें we simply classify based on let's say race, nationality, gender, etc., which helps us understand or simplify things. जब हम एक ग्रुप में क्लासीफाई हो गए हैं, now comes social identification where we adopt the group's identity such that even our self-esteem sometimes gets associated with the group. Sometimes our self-esteem also gets associated with the group. तो सोशल आइडेंटिफिकेशन में हम जिस ग्रुप में हम क्लासीफाई खुद तो कर रहे हैं, दूसरों को कर रहे हैं, उसको हम उसकी आइडेंटिटी को हम अडॉप्ट कर लेते हैं टू द पॉइंट दैट हम इमोशनली उससे कनेक्ट हो जाते हैं या फिर हमारी सेल्फ एस्टीम जो है उससे कनेक्ट हो जाती है. तो दिस इज़ आर सोशल आइडेंटिफिकेशन. फाइनली वी हैव आर सोशल कंपैरिजन. तो इसमें सिंपली वी कंपेयर
इन ग्रुप, जो कि हमने पहले भी पढ़ा, वर्सेस आउट ग्रुप में। तो एक जो अपना जिस ग्रुप को हम बिलोंग करते हैं वो हमारा इन ग्रुप बन जाता है, और जिसको हम नहीं करते हैं वो आउट ग्रुप बन जाता है, अस वर्सेस देम। तो इन ग्रुप में एक चीज़ जो देखने को मिलती है वो है इन ग्रुप फेवरेटिज्म, और आउट ग्रुप में कभी कभी देखने को मिलती है एक आउट ग्रुप के लिए एक सेंस ऑफ राइवलरी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे इन ग्रुप को हम, हमारा जो अपना ग्रुप है जिसको हम बिलोंग करते हैं उसको हम फेवर करते हैं। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आउट ग्रुप होमोजेनिटी। एक और पॉइंट है आउट ग्रुप होमोजेनिटी, तो हम इसको हाईलाइट कर देंगे। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक तो इन ग्रुप फेवरेटिज्म देखा जाता है हमारे इन ग्रुप के लिए, और एक और चीज़ जो देखी जाती है वो है आउट ग्रुप होमोजेनिटी। नाउ आउट ग्रुप होमोजेनिटी क्या है कि हम ऐसे मानने लगते हैं कि जो आउट ग्रुप है, जो दूसरा ग्रुप है, उसमें सब लोग एक जैसे हैं, बट जो हमारा ग्रुप है, इन ग्रुप है, उसमें बहुत डाइवर्सिटी है। So now first point is that we favor our in group more than the out group, so hence the term in group favoritism, and there might be rivalry for the out group. Now here the second important point is out group homogeneity, where we believe that the out group, the members of the out group are all the same. They are not different at all, while we, the members of the in group, we are diverse, we are different. So there is a difference between us, we are not all the same. So these are two important points that we see in our social comparison. So this is there. Here our self-esteem is affected, and yeah, so these are our three stages. Now we'll understand them through an example. Let's take an example. Let's say there is someone, let's say a man named Arav. So Arav is an urban resident. He lives in an urban place. तो let's say Arav नाम का एक इंसान है जो सिटी में रहता है, एक विलेज में नहीं रहता, एक सिटी में रहता है। तो अर्बन एरिया जिसको बोलते हैं, तो वो एक अर्बन रेसिडेंट है। तो अब वो क्लासीफाई करता है खुद को एज एन अर्बन रेसिडेंट। ही क्लासीफाइज हिमसेल्फ एज अर्बन, while and even when he considers other people, he pays attention to whether they belong to the urban, they are urban residents or rural. तो जैसे आरव खुद को अर्बन मानता है, और वो दूसरों को भी जब देखता है तो वो कभी मतलब उनको वो डिस्टिंग्विश कर लेता है कि या तो वो अर्बन है या तो वो रूरल है। तो here only categorization has happened. Now we'll move on to social identification, where Arav feels good about the fact, let's say, that he belongs to that he is an urban resident, that he belongs to an urban place. तो let's say आरव को खुशी मिलती है इस चीज़ से, गर्व होता है कि वो एक अर्बन रेसिडेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसको उसका सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है बिकॉज ही इज़ एन अर्बन रेसिडेंट। तो अब कंपैरिजन पे अगर आते हैं तो उसको लगता है कि एज़ कम्पेयर टू रूरल रेसिडेंट्स, अर्बन रेसिडेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, कि वो ज़्यादा एडवांस्ड हैं, ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो ही बिलीव्स दैट कम्पेयर टू रूरल people, rural residents, urban residents are more advanced, more progressive. So and us versus them mindset develops, where the in group here would be the urban people, the urban residents, and out group would be the rural residents. So maybe आरफ को लगने लगे कि जो रूरल लोग हैं वो लोग बहुत बैकवर्ड हैं, प्रोग्रेसिव नहीं हैं, बेसिकली कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, बेकार जगह है, मे बी दैट इज़ व्हाट ही थिंक्स। तो बट उसको लगता है कि हमारा जो इन ग्रुप है, इन ग्रुप फेवरेटिज्म, कि हमारा ग्रुप ही बेस्ट है, और मे बी उसको लगता हो कि जो रूरल के लोग हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, क्योंकि वो उनसे उतना फेमिलियर नहीं है, दैट इज़ व्हाट रिजल्ट्स इन आउट ग्रुप होमोजेनिटी, व्हेन यू आर नॉट वेरी फेमिलियर विथ सम कम्युनिटी, सम कल्चर,
कल्चर, तो उसको लगता है कि वो लोग सब एक जैसे हैं, सब किसी को भी कुछ नहीं आता है। बट हमारे यहाँ पे, हमारे जो अर्बन एरिया है, यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत टाइप के लोग हैं, तो दिस वुड बी आर आउट ग्रुप होमोजेनिटी। तो दिस वॉज एन एग्जाम्पल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दीज 3 stages. Now we will move on to our next theory, that is scapegoating. Now we will talk about the third theory that comes under intergroup relations. So अब हम थर्ड एक theory की बात करेंगे जो intergroup relations के अंडर आता है। तो scapegoating अगर हम बात करें कि क्या origin था इस टर्म का, कहाँ से शुरू हुआ, so if we talk about the origin of scapegoating, the term was mentioned, scapegoating was mentioned, or rather we should say it originated from a ritual that was mentioned in the Hebrew Bible. So what Hebrew is exactly, it's an ancient language, but you can read more about it, which is not important for a syllabus, so we'll not talk a lot about it. So it was mentioned as a ritual in the Hebrew Bible, where sins were symbolically transferred to a goat, and then the goat was set out free in the desert as a symbol of carrying away the sins of humanity और ऑफ द पीपल। सो जो ये टर्म है स्केपगोट, ये सबसे पहले ये जो ओरिजिनेट हुआ, हिब्रू एक बहुत पुराना लैंग्वेज है जो इज़राइल में यूज़ होता था, पैलेस्टीन में। सो आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो हिब्रू जो बाइबल है उसमें एक रिचुअल मेंशन था, जिसमें जो आपकी गलतियां हैं, जो सिंस हैं, आपने जो पाप किए हैं, वो सिम्बॉलिकली, मतलब अब लिटरली नहीं, बट वो एक तरीके से ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे कुछ रिचुअल्स के थ्रू, एक गोट में, एक बकरी में, और उस बकरी को डेजर्ट में छोड़ दिया जाता था, कि जो वो दिखाता था कि कैसे जो कुछ लोग हैं, एक ग्रुप है या फिर एक इंडिविजुअल है, उन्होंने जो पाप किए हैं वो उनसे कैसे मुक्त हो गए। तो ये एक ओरिजिन है जो हिब्रू बाइबल में मेंशन था, वहाँ से ये टर्म आया। सो नाउ नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट, सो विल क्विकली राइट इट हियर। सो इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिब्रू बाइबल, where the ritual was to symbolically transfer the sins into the goat. So this was the origin of the term. Now there was a French sociologist named Emile Durkheim, sorry. So वो एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट हैं, ये एमिल डर्कहाइम। तो इन्होंने स्केपगोट को डिस्क्राइब किया एक सोशोलॉजिकल, बिकॉज वो सोशोलॉजिस्ट ही थे, एक सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट से, पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया, डिस्क्राइब किया। तो एमिल डर्कहाइम जो हैं, इनका मानना था कि जब भी कुछ बुरा होता है, कुछ मिसफॉर्चुनेट होता है, तो लोग ढूंढते हैं कि किसको, जैसे एक टर्म है बलि का बकरा, तो दैट इज़ बेसिकली स्केपगोटिंग ओनली। तो बलि का बकरा ढूंढते हैं लोग, ताकि उन्होंने जो गलती की है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ना लें, किसी और पे डाल दें, और वो खुद people crave stability, they want stability. So to maintain that, whenever something misfortunate happens, people look for individuals or societies, they look for someone or a group, an individual or a group to entirely put the blame on, so that they can they are not responsible about it anymore for their misfortune and for stability. So जब भी कुछ बुरा होता है तो एक इंसान पे डाल दो या एक ग्रुप पे डाल दो, ताकि आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए, आप आराम से रहें, पीस में रहें। तो ये उन्होंने एमिल डर्कहाइम उन्होंने बताया, उन्होंने मेंशन किया इसको सबसे पहले।
और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने और एक्सपैंड किया इस थ्योरी पे। उन्होंने बोला कि सोसाइटी जो होती है वो अक्सर ऐसा करती है, ऐसा देखा गया, रिसर्च किया गया, तो पता चला कि ऐसे काफ़ी बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोग ऐसे झाड़ देते हैं और दूसरों पे जब कुछ बुरा होता है तो दूसरों पे डाल देते हैं। सो हिज फॉलोअर्स ऑल्सो डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड फाउंड दैट सोसाइटीज हैव always been doing it, almost always they have been doing it. They have been trying to find a bali ka bakra basically to entirely put the blame on. So this is what Emil Durkheim said. Now we'll move on to what actually scapegoating is. Now let's talk about what scapegoating actually is. तो अभी तक हम समझ गए हैं कि वो क्या होता है, बट हम टेक्निकली समझते हैं कि स्केपगोटिंग इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द ब्लेम ऑन, सो यू ब्लेम द आउट ग्रुप फॉर let's say some problems or some frustrations faced by the in group. तो हमने ऑलरेडी पढ़ा इन ग्रुप आउट ग्रुप के बारे में। तो आउट ग्रुप इज सम ग्रुप बेसिकली दैट वी डू नॉट बिलोंग टू एंड इन ग्रुप इज द वन दैट वी बिलोंग टू। तो हम ब्लेम कर देते हैं या हम नहीं, लोग ब्लेम करते हैं आउट ग्रुप को फॉर सम प्रॉब्लम्स या कुछ फ्रस्ट्रेशंस जो इन ग्रुप फेस कर रहा है। या सो दैट इज स्केपगोटिंग। तो इसमें यू आर एट्रीब्यूटिंग some negative experiences, some negative experiences that has happened to an innocent individual to relieve yourself from, let's say, some tension, some emotional tension. So this is what happens in scapegoating. तो scapegoating में हम क्या करते हैं, जो आउट ग्रुप है, जो हमारा ग्रुप नहीं है, हमारा ग्रुप इन ग्रुप है, तो और जो दूसरा ग्रुप है वो आउट ग्रुप है, हमने पढ़ा, तो हम ब्लेम करते हैं आउट ग्रुप को फॉर द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय द इन ग्रुप। तो यहाँ पे दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। वी एट्रीब्यूट नेगेटिव, कुछ भी बुरा हुआ होता है तो उसको हम एक इनोसेंट इंडिविजुअल पे डाल देते हैं, ताकि जो स्केपगोटिंग ग्रुप है, जो बेसिकली हमारे इन ग्रुप है, वो इमोशनली टेंशन ना ले, वरी ना करे, चिंता ना करे, इसीलिए खुद को बचाने के लिए हम बेसिकली दूसरे पे डाल देते हैं। तो दिस इज स्केपगोटिंग। अनदर स्मॉल एंड इम्पॉर्टेंट, I wouldn't say, but another point would be कि it can be of 4 types. So it can take 4 different forms, scapegoating. It can be one-on-one, that is one individual blames another. It can be one-to group where one individual blames a group. It can be group to one where an entire group is blaming an individual, or group to group where one group blames the other. So this is our scapegoating. One last point, what is important is that scapegoating can lead to prejudice, discrimination, or even violence. So it's important to remember कि जो scapegoating है ये लीड कर सकता है, इसका एक अंजाम हो सकता है prejudice, discrimination और इनफैक्ट violence भी। तो ये एक important point है। Now अब हम मूव करेंगे next theory. We'll talk about another theory that is called the social exchange theory. Now this was given by Thibault and Kelly in the year 1959. तो ये थ्योरी दिया था थिबॉट एंड केली ने 1959 में। तो इस थ्योरी में ऐसा माना जाता है कि जो सोशल बिहेवियर है, कि हम कैसे बिहेव करते हैं इन जनरल, वो इससे भी डिसाइड होता है कि वो एक एक्सचेंज प्रोसेस है, ये इस थ्योरी ने बोला था। सो दिस थ्योरी बिलीव्स दैट सोशल बिहेवियर इज अ रिजल्ट, इज ऑल्सो अ
is basically an exchange process. तो यहाँ पे we evaluate the pros and cons of a relationship. यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है एक रिलेशनशिप में रहने के. तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं, एक है हमारे कॉस्ट्स, जो कि है नेगेटिव, rather I would say the elements of a relationship that have negative value for the individual, which could include things like let's say for example maybe the money invested, or maybe the time that was invested. So things like these which have a negative value in respect to a relationship. So these are negative elements in a relationship which makes the person feel that, you know, maybe the relationship is not worth continuing. Now the second one would be rewards or benefits which hold a positive value and which can include things like maybe fun, the amount of fun that you're having in the relationship, the love that you receive in that relationship, so etc. It could be other things as well. So these are two important elements that were mentioned in this theory. So the goal here, if I say what the goal is, it is to minimize the costs and maximize the benefits. So if a relationship has more costs than rewards, then there are chances that the person will try to end the relationship, and if there are more rewards then they'll want to stay in the relationship. तो जो कॉस्ट हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जो एक नेगेटिव वैल्यू कैरी करती हैं. एक रिलेशनशिप की एक ऐसी एलिमेंट जो नेगेटिव वैल्यू कैरी करती है इंसान के लिए, जैसे कितना टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इंसान में, उस रिलेशनशिप में, कितना मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे. तो ये नेगेटिव चीज़ें कॉस्ट में आएंगी. और जो पॉजिटिव चीज़ें एलिमेंट्स हो जाएंगी आपके रिलेशनशिप की, जैसे कितना मज़ा आता है आपको, कितना प्यार मिलता है आपको उस रिलेशनशिप में, तो ऐसी चीज़ें रिवॉर्ड से बेनिफिट्स होंगी. और जो टारगेट होता है वो है कि मैक्सिमाइज करना बेनिफिट्स को और मिनिमाइज करना कॉस्ट्स को. अगर कॉस्ट ज़्यादा है, अगर आप ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक रिलेशनशिप में, देयर आर चांसेस दैट आप रिलेशनशिप को एंड कर देंगे. और अगर रिवॉर्ड ज़्यादा है तो आप कंटिन्यू करेंगे. तो दिस इज़ द सोशल एक्सचेंज थ्योरी. Now let's take an example. Let's say that you are in a relationship where your partner is very caring, very fun, so you like staying with them, but then sometimes they also act very controlling. तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट्स से आप एक रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपका पार्टनर बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, बट कभी कभी वो बहुत कंट्रोलिंग एक्ट करता है. लेट्स से वो नहीं चाहता कि आप आपके दोस्तों से, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें, या इन्हीं के साथ करें, उनके साथ ना करें. मे बी दे आर सो कंट्रोलिंग दैट दे डिसाइड फॉर यू दैट व्हाट फ्रेंड्स यू शुड मीट एंड व्हाट यू शुड नॉट, विच फ्रेंड्स यू शुड नॉट. सो दे आर कंट्रोलिंग एट टाइम्स, बट देन दे आर ऑल्सो लविंग. सो इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल. मे बी you are someone who likes the love that exists in the relationship. Maybe you are having fun, so maybe if that is something that matters to you more, so according to you the rewards are more, so you will prefer staying in the relationship. But if let's say what matters to you more is that your partner should not control you. अगर आपको लगता है कि आपके लिए प्यार और जो आपको मज़ा आ रहा है रिलेशनशिप में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप रहेंगे उस रिलेशनशिप में. बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आप कोई आपको कंट्रोल क्यों करेगा, आपका इंडिपेंडेंस क्यों छीने, तो अगर इफ़ द लैक ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ व्हाट is important to you, then you will then according to you the costs are more than the rewards. फिर आपके लिए जो कॉस्ट हैं वो ज़्यादा
बड़े हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे रिवॉर्ड से, फिर आप रिलेशनशिप को एंड करना प्रेफर करेंगे. सो देन इफ़ द कॉस्ट आर मोर फॉर यू, इफ़ यू फील दैट योर इंडिपेंडेंस इज मोर important than the love and care in the relationship, then according to the costs are more than the rewards, so you would prefer ending the relationship. So this is our social exchange theory. Now another important point here करेंगे, थिबॉट और केली ने 4 स्टेजेस दिए थे ऑफ अ रिलेशनशिप अंडर दिस थ्योरी. तो हमारा फर्स्ट स्टेज है सैम्पलिंग. तो सैम्पलिंग में व्हाट डू वी डू, वी असेस आर पोटेंशियल costs and benefits. So we assess them. So we assess our potential costs and benefits in the relationship, because it is a new relationship, so you're still figuring it out, what are the costs, what are the benefits. So that is there in the first stage. The second would be bargaining. जैसे हम बार्गेनिंग में, जैसे हम शॉप्स में बार्गेन करते हैं, वैसे वी नेगोशिएट. सो बार्गेनिंग में वी एक्सचेंज आर कॉस्ट्स एंड benefits. So bargaining में we exchange, the people involved in the relationship, they exchange the costs and benefits such that they negotiate, we'll write it here, they negotiate what's advantages for them in the relationship. तो इसमें समझते हैं, जैसे पहले में देखते हैं, असेस करते हैं कि क्या क्या कॉस्ट और बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये हम सैम्पलिंग में देखते हैं. फिर बार्गेनिंग में जो कॉस्ट और बेनिफिट्स हैं एक दूसरे के, वो एक्सचेंज होते हैं, समझा जाता है, और ये समझा जाता है कि क्या सही है, कौन से कॉस्ट बेनिफिट्स आप प्रेफर करते हैं, वो प्रेफर करते हैं. तो फिगरिंग आउट का ये एक फेज़ होता है. नाउ द थर्ड वुड बी कमिटमेंट. नाउ दिस इज़ द पॉइंट जब स्टेबल हो चुका है रिलेशनशिप काफ़ी हद तक. तो नाउ देर इज़ अ कॉन्स्टेंट एक्सचेंज ऑफ रिवॉर्ड्स. सो देर इज स्टेबिलिटी इन द रिलेशनशिप. तो अब ऐसे जो रिवॉर्ड्स हैं वो फिगर आउट हो चुके हैं और वो बहुत एक्सचेंज हो रहे हैं, तभी एक कमिटमेंट का स्टेज बन चुका है. इसीलिए फाइनली हमारा है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. हमारा फाइनल स्टेज है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जिसमें एक नॉर्म जैसा एस्टैब्लिश हो जाता है कि कौन से कॉस्ट हैं, कौन से बेनिफिट्स हैं, किसको क्या पसंद है, नहीं है. ये सब एकदम पूरी तरीके से फिगर आउट हो चुका है और ये एक बहुत ही सेटल्ड रिलेशनशिप बन जाता है. अब फाइनली सब कुछ डिसाइडेड है. द रिलेशनशिप पहले कमिटमेंट था, बट अब ये हम बोलेंगे एक फिक्स एक नॉर्म्स और इस्टेब्लिश हो गए हैं, नॉर्म्स इस्टेब्लिश हो गए हैं कि किसको क्या पसंद है, नहीं है. सब कुछ फाइनल हो चुका है. एंड द मेन पॉइंट इज दैट इट इज़ अ सेटल्ड रिलेशनशिप, क्योंकि कमिटमेंट में स्टिल देयर इज़ अ फिगरिंग आउट स्टेज, बट फाइनली इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में इट इज़ ऑल सेटल्ड. So in the commitment stage we saw that there was an exchange, there was a consistent exchange of rewards, but still people were figuring out. But in the institutionalization stage the norms have been established that what are rewards, what are costs in the relationship, who is offering what, and the important point is that they are all settled. The relationship, the people are settled in the relationship. So these are the 4 stages of the social exchange theory, and this is very important. ये काफ़ी बार आ चुका है नेट में, तो दिस इज़ वन थिंग वी शुड रिमेंबर. अब हम एक बहुत छोटी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे जो है हमारा रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी.
जिसमें बेसिकली यू फील डिप्राइव्ड when you compare yourself to others। तो एक पर्टिकुलर कुछ स्टैंडर्ड होता है, आपको लगता है कि हमारे पास कुछ कम है। सो इन रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी, इसमें आपको लगता है आपके पास कुछ एक चीज़ कुछ कम है कंपेयर टू समबडी एल्स, कि किसी और के रेस्पेक्ट में उसके पास वो है पर मेरे पास नहीं है, तो हम किसी और से कंपेयर करते हैं, तो दैट इज़ रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी। तो अब ये डिप्राइवेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, इट कैन बी समथिंग मटीरियल, जैसे कि लेट्स से कार्स वगैरह, और इट कैन बी समथिंग इनटैंजिबल लाइक सोशल स्टेटस और पार। सो ऐसी चीज़ या फिर रेस्पेक्ट, तो किसी भी टाइप का वो चीज़ हो सकता है जिसको डिप्राइव फील हो रहा है, बट फिर ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद को किसी से कंपेयर कर रहे हैं। सो दीज वुड बी आर थियरीज फॉर इंटरग्रुप रिलेशंस। नाउ फाइनली वी विल टॉक अबाउट prejudice again. So we'll finally talk about prejudice a bit and then we'll end the class. We will talk about what leads to prejudice basically, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि prejudice किन किन चीज़ों से फॉर्म हो सकता है, what all can lead to prejudice. So one important point is stereotype. As we studied earlier, हमने पहले भी पढ़ा कैसे stereotype could lead to prejudice, कि आपका एक ऑलरेडी एक नोशन है, आपको लगता है कि ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आपका ये बिलीफ है, बट देन धीरे धीरे वो बिलीफ टर्न हो सकता है एक नेगेटिव एटीट्यूड में। सो दैट बिलीफ ऑफ योर्स विच कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल मे बी, बट देन नॉट न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव, विच कैन इवेंचुअली बिकम अ नेगेटिव एटीट्यूड। यू कैन डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड फॉर वट एवर रीजन्स। सो stereotype could lead to prejudice. Second point would be identity theory. Social identity theory that we studied earlier, we saw how sometimes our identity forms बिकॉज ऑफ आर मेम्बरशिप इन अ ग्रुप। तो हमने सोशल आइडेंटिटी थ्योरी में देखा कि कैसे जिस ग्रुप को हम बिलोंग करते हैं, कभी कभी हमारी जो आइडेंटिटी है, हम जो हैं वो हम उसी ग्रुप के पार्ट होने की वजह से हमारी एक आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है। तो कभी कभी वो आइडेंटिटी जो हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं ग्रुप के साथ, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, सो वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद दैट ग्रुप सो मच, सो स्ट्रॉन्गली दैट आवर सेल्फ एस्टीम गेट्स एसोसिएटेड, इवन आवर इमोशंस गेट एसोसिएटेड with being a part of that group. So when we feel threatened about our us belonging to that group, whenever we feel threatened, हमें डर लगता है कि कोई हमें चैलेंज कर रहा है कि हम उस ग्रुप के पार्ट है या नहीं है, या अलग अलग तरीक़ों से। तो whenever we feel threatened किन्हीं कारणों से, तो we start so prejudice starts happening basically। तो जब हमें लगता है कि हम थ्रेटन होते हैं कि हमारे ग्रुप की मेंबरशिप को लेके, तो चांसेस हैं कि प्रेजुडिस बन जाए हमारे आउट ग्रुप को लेके। तो हम इन ग्रुप का पार्ट है, तो आउट ग्रुप को लेके हमारे प्रेजुडिस नेचुरली बन जाते हैं। और ये यूजुअली होता है हमारे जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है एक ग्रुप के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो टू स्ट्रेंथन आवर सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द ग्रुप, टू समटाइम्स ऑल्सो एस्टैब्लिश सुपीरियरिटी, खुद को बड़ा दिखाने के लिए भी हमारा नेचुरली एक सेंस ऑफ प्रेजुडिस बन जाता है। तो this is another point. Now there is also prejudgments, which are basically preconceived beliefs about a group, about an individual, despite the fact that there are objective facts that contradict those beliefs. तो prejudgments
ऐसे बिलीव्स हैं, ऐसी हमारी धारणाएं हैं किसी एक ग्रुप को लेके या एक इंसान को लेके, जो हमारे बहुत टाइम से, बहुत पहले से चली आ रही हैं। और जबकि हमें दिखाया जा रहा है, हमारे सामने कुछ फैक्ट्स, कुछ स्टैटिस्टिक्स रखे जा रहे हैं फॉर एग्जांपल कि नहीं ये गलत है, बट उसके बावजूद हम उसको इग्नोर करके हम जो पहले से मानते आ रहे हैं हम उस पर ही फोकस करते हैं। फोर्थ पॉइंट वुड बी lack of exposure to diversity. So हमारा fourth point is the lack of exposure to diversity. So when we are not someone who has met many people, come across many different kinds of people in our lives, maybe we have always for whatever reason stayed in one certain region and never gone out of that region, not met many new people, so that there are chances that since we are unfamiliar with other people, with certain communities, let's say, so let's say you all your life you have lived in your hometown and not gone to some other place or explored different places in your country or in the world. So maybe you have never come across somebody who belongs, let's say, to the LGBTQ plus community. So when you for the very first time you meet somebody of that community, there are chances that you will have a prejudice, a negative attitude towards them. तो let's say कि आप अपने ही घर में, अपने ही होम टाउन में हमेशा रहे, सिटी में कहीं और नहीं गए, तो नए लोगों से नहीं मिले उतना, तो आपको पता नहीं चला कि लेट्स से कि LGBTQ प्लस जो कम्युनिटी है कि वो क्या है, उनके लोग कौन होते हैं, उनके बारे में कुछ भी आपको नहीं आइडिया है। तो जब लाइफ में पहली बार आप उनसे मिलेंगे, देयर आर चांसेस कि आपका नेगेटिव एटीट्यूड रहे उनकी तरफ। तो versus somebody who has had exposure, has come across diversity, has idea about them, knows about them, तो उनका chances है कम prejudice होने का। हमारा फिफ्थ पॉइंट है fear and insecurity. Now let's say जो हमने scapegoating में देखा, वही हम यहाँ पे देखते हैं कि जब कुछ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कोई इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए फिर आप डर जाते हैं कि ब्लेम आप पे आ जाएगा या फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इसीलिए आप उस ब्लेम को किसी और, आप एक स्केपगोट ढूंढते हैं और उस पर ब्लेम डाल देते हैं। तो अब आपने उन पे ब्लेम डाल दिया है, अब उनके लिए आपका प्रेजुडिस बन जाता है। एज आई सेड कि स्केपगोटिंग कैन लीड टू प्रेजुडिस। तो as we studied earlier that let's say there is some economic instability, some political instability, some issues, so for all those misfortunes, for all those negative things, you are blaming somebody who is innocent, so that you don't feel responsible, you don't feel the guilt anymore, and now after you have scapegoated someone, there are chances that prejudice might develop. Now the sixth point is historical events. Now the best example for this would be the COVID-19. So क्योंकि COVID-19 के टाइम क्योंकि वो चाइना से ओरिजिनेट हुआ, बट फिर लोग एशियंस के प्रति बहुत डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, उनका बहुत प्रेजुडिस्ड एटीट्यूड बन गया। सो बिकॉज COVID-19 originated from China, so people in the world, they started discriminating, they developed a prejudiced attitude towards Asians in general. So that is historical events कि किसी मे बी किसी नेशन के या फिर किसी कम्युनिटी के इंसान ने कुछ गलत किया हो बहुत पहले, लेकिन बहुत टाइम तक उसके कॉन्सिक्वेंसेस उस कम्युनिटी को, बाकी लोगों को जिनकी गलती भी नहीं है, उनको झेलना पड़ता है। नाउ सोशल इन्फ्लुएंस एंड मीडिया रिप्रेजेंटेशन, विच इज़ प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि कभी कभी जो हमारे फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनके क्या ओपिनियंस है, उससे भी हमारा एक प्रेजुडिस्ड एटीट्यूड बन जाता है। सिमिलरली मीडिया में, टीवी में, हर जगह यूट्यूब पे वगैरह एक्सेट्रा पे कैसे दिखाया जा रहा है किसी कम्युनिटी को, किसी इंसान को, उसको देख के भी हमारा एक प्रेजुडिस्ड एटीट्यूड, एक नेगेटिव एटीट्यूड बन सकता है किसी के लिए।
Finally we will talk about how we can some ways that we can learn to overcome prejudice. तो अब हम बात करेंगे कुछ तरीकों की जिनसे हम prejudice को कम करने की कोशिश कर सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है एम्पैथी ट्रेनिंग, जिसमें हम वर्कशॉप्स कंडक्ट करा सकते हैं, जिसमें लोगों को सिखाया जाए कि कैसे आप खुद को दूसरों के शूज़ में उनके पोजीशन में रख के देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनको कैसे फील होता है, कि वो कैसे क्यों एक्ट करते हैं, वाई डू दे डू व्हाट दे डू. सो एम्पैथी ट्रेनिंग थ्रू वर्कशॉप्स कैन बी डन सो दैट पीपल अंडरस्टैंड द अदर पर्सन's point of view as well. Secondly, some intergroup activities could be conducted where collaborative effort could be put by individuals, where when they spend time together they understand each other and the prejudice could reduce. तो जब वो लोग कोलैबोरेटिव एक एफर्ट डालेंगे, साथ में कुछ काम करेंगे, तब वो एक दूसरे को जान पाएंगे और प्रेजुडिस जो है वो कम हो जाएगा. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कॉन्टैक्ट हाइपोथीसिस, जिसमें पीपल ऑफ इक्वल स्टेटस, जो ना कोई ज़्यादा पावरफुल है ना कम पावरफुल है, ना कोई ज़्यादा नॉलेजेबल है ना कोई कम है, तो पीपल ऑफ इक्वल स्टेटस दे वर्क टुगेदर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू दे वर्क कोलैबोरेटिवली एक्चुअली, सो दैट हेल्प्स रिड्यूस प्रेजुडिस. देन वी विल टॉक अबाउट बायस अवेयरनेस, जिसमें कि ट्रेनिंग दिया जा सकता है लोगों को कि वो अवेयर हो जाए कि वो किस चीज़ के बारे में बायस्ड है, क्यों बायस्ड है, उनको समझने में एक हेल्प मिले. सो बायस ट्रेनिंग इज़ बेसिकली व्हेन trainings and all are conducted to help people understand why are they biased about certain groups and what exactly is it that they feel about them and why do they feel about it, so to understand themselves better. And finally, enforcing discrimination laws. तो कुछ लॉज एनफोर्स किए जा सकते हैं एंटी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, ताकि गवर्नमेंट के लेवल पे भी एक काम हो, ताकि प्रेशर बने लोगों पे, एक प्रेशर भी नहीं बोलेंगे बट एक गवर्निंग बॉडी हो जो ध्यान दे कि और कुछ लॉज हो जो प्रोहिबिट करे कि आप ऐसे ऐसे एक्ट नहीं कर सकते. सो सम लॉ शुड बी देयर टू गवर्न हाउ पीपल एक्ट so that they do not discriminate against people, harm them. So laws could also help. So these are the 4 ways that prejudice could be reduced. So this is it. I'm sorry, this is it for our today's class. Finally we will do some questions from these topics, so we'll move ahead to that. Thank you. So हमने जो वीडियो बनाया है वो ऑलरेडी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, जो हमारा थ्योरी पार्ट था. तो यहाँ पे हम PYQs को जितना शॉर्ट में हो सके डिस्कस करेंगे, अगर कुछ इम्पोर्टेंट हुआ तभी. सो द थ्योरी पार्ट हैज़ ऑलरेडी मेड द वीडियो प्रिटी लॉन्ग, सो वी विल नॉट एक्सटेंड इट एनी फर्दर एंड we'll only discuss points that we have not discussed before. So our first question is, so here they are asking to arrange the processes that are involved in the social identity theory. तो इस क्वेश्चन में बोला है कि ऑर्डर में अरेंज करिए उन प्रोसेसेस को जो आती हैं सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के अंडर. तो वी विल पॉज द वीडियो, we will answer the question accordingly and then the next slide we will discuss the answer. तो वीडियो को हम लोग पॉज करेंगे, क्वेश्चन पे अपना आंसर डिसाइड करेंगे, फिर वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और आंसर डिस्कस करेंगे. तो आई होप आपने सोच लिया है कि क्या होगा सही ऑर्डर. सो दिस इज आवर आंसर. सबसे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी में कि पहले कैटेगराइजेशन होता है, फिर एक आइडेंटिटी बनती है और फिर हम कंपेयर करते हैं, सोशल कंपैरिजन, जिसमें अस वर्सेस देम का कॉन्सेप्ट बन जाता है. नेक्स्ट वी हैव सेकंड क्वेश्चन,
दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, हमने पहले भी बोला था, इन केस नहीं बोला हो देन प्लीज़ रिमेंबर इट। रॉबर्स केव से और जो हमारी रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो दे आर आस्किंग दैट विच सोशल बिहेवियर हैव यू सीन इन द कैन वी सी इन द रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट। तो जो ये एक्सपेरिमेंट था रॉबर्स केव का, इसमें कौन सा सोशल बिहेवियर इन चारों में से हमने देखा हुआ है। तो आंसर हमारा हम डिस्कस करेंगे। तो इक्वल स्टेटस कॉन्टैक्ट। तो हमने जब ये थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था, मैंने वर्बली बोला था बट वी डिड नॉट राइट इट, आई डिड नॉट राइट इट ओवर देयर। सो इफ यू आर मेकिंग नोट्स विच आई होप यू आर, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस की हमने बात की थी, उसमें हम देखते हैं एक इक्वल स्टेटस होता है। तो जो दो पार्टीज, जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, उनका ना कोई ज़्यादा पावरफुल होता है ना पावरलेस होता है, दोनों का इक्वल स्टेटस होता है और तभी वो लोग अकॉर्डिंगली साथ में मिलके काम करते हैं। तो वी सी इक्वल स्टेटस कॉन्टैक्ट इन कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस, और यू कैन से दे आर मोर और लेस द सेम थिंग which we see in the Roberts cave experiment। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। नाउ ऑन टू द थर्ड वन। सो इसमें से हाँ, तो कौन सी थ्योरी है जो ऐसा बोलती है कि इकोनॉमिक कंपटीशन से, कि जो आर्थिक स्थिति जो आप लेट्स से आप कंपेयर कर रहे हैं अपनी किसी और के साथ, या कोई भी इंसान कंपेयर कर रहा है, तो आर्थिक स्थिति कंपेयर करने से जो कंपटीशन एक क्रिएट होता है, उससे भी प्रेजुडिस बनता है। तो इनमें से कौन सी जो थ्योरी है वो ऐसा बताती है। सो विच ऑफ दीज थ्योरीज एडवोकेट्स बिलीव्स दैट प्रेजुडिस स्टेम्स फ्रॉम इकोनॉमिक कंपटीशन। सो आवर आंसर is the third one, that is the realistic conflict theory. As we discussed in this theory that scarcity of resources, whenever that develops, there is a sense of competition and a sense of hostility। एक नफरत की भावना आ जाती है जब भी resources किसी भी चीज़ की कमी महसूस होती है लोगों को, एक competition क्रिएट हो जाता है और एक नफरत की भावना आ जाती है, तो उससे भी प्रेजुडिस हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ में क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कौन सी चीज़ है जो विच लीड्स टू प्रेजुडिस, विच प्रमोट्स प्रेजुडिस। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो प्रमोट करती है, इनकरेज करती है प्रेजुडिस को। सो इसका करेक्ट आंसर हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट राइट। तो इसमें क्यों है ये तीन राइट आंसर्स। तो फर्स्ट पॉइंट है थ्रेट्स टू सेल्फ एस्टीम। सो व्हेन यू फील, विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि व्हेनेवर यू फील योर सेल्फ एस्टीम इज बीइंग थ्रेटेंड फॉर वट एवर रीजन, जब भी आपको लगता है कि आपका सेल्फ एस्टीम खतरे में है किसी भी रीजन से, maybe you feel somebody is doing better than you and you're not able to perform as well, maybe कोई आपसे बेटर परफॉर्म कर रहा है किसी चीज़ में, आपको उसमें जेलसी हो रही है, आपको लग रहा है कि मैं कैसे नहीं कर पा रही हूँ, या फिर सिमिलर रीजंस, आपका रिलेशनशिप में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए भी आपको लगता है कि मे बी दे आर द प्रॉब्लम, मे बी अ थर्ड पार्टी इज द प्रॉब्लम। सो व्हेनेवर यू फील योर सेल्फ एस्टीम इज बीइंग हर्ट, इज बीइंग थ्रेटेंड, दैट कुड बी द रीजन। तो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था। सेकेंड है कॉम्पिटिशन ऑफ रिसोर्सेज, विच वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। थर्ड है सोशल कैटेगराइजेशन, जो कि हमने देखा कि सोशल आइडेंटिटी थ्योरी इटसेल्फ कुड बी अ रीजन फॉर प्रेजुडिस। व्हेनेवर आपको लगता है कि आपकी जो एक आइडेंटिटी, जिस ग्रुप के साथ आप रह रहे हैं उससे आपकी आइडेंटिटी एसोसिएट हो गई है, तो उससे आपका इमोशंस, आपके एस्टीम, सब कुछ एसोसिएट हो जाता है, तो उससे भी एक जो दूसरा जो अस वर्सेस देम बन जाता है, तो जो देम होता है, जो आउट ग्रुप होता है, उसके लिए उनके लिए प्रेजुडिस बन सकता है। सो सोशल कैटेगराइजेशन इज पार्ट ऑफ दैट theory, of that social identity theory, where us versus them, out group versus in group forms, so that could also lead to prejudice. Now social recategorization is something positive, where you think about the categories that you've made, you rethink them, and it could change your perception about a certain group or person. There are chances it will change. Maybe it will not turn exactly positive, your attitudes, your beliefs, but
वो चांसेस हैं कि आपके जो एटीट्यूड, जो बिलीव्स हैं किसी एक के बारे में, मे बी वो एकदम पॉजिटिव ना हो जाए बट मे बी वो नेगेटिव ना रहें. So there are chances. So you rethink about your opinions and beliefs, your attitudes about a certain person. So that is recategorization, जिसमें कि which could lead to reducing prejudice. But here we want what factors lead to prejudice, which promote prejudice. तो social recategorization से आपका prejudice कम होने के chances हैं. बट यहाँ पूछा है किस फैक्टर से बढ़ते हैं, promote होते हैं, तो वो हमारा A, B और C हो जाएगा. Now the fifth question asks that the robbers cave experiment by sheriff showed the value of which of the following aspects in reducing prejudice. तो prejudice कम करने के लिए जो robbers cave experiment था जो कि शेरिफ ने कराया था, उसमें इनमें से कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, कौन सी चीज़ बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई है prejudice को रिड्यूस करने के लिए. तो ये एक क्लियर कट आंसर है हमारा सुपर ऑर्डिनेट गोल्स. ऐसे गोल्स जिसमें जो इन्वॉल्व्ड पार्टीज हैं उनका सबका कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन सब ज़रूरी होता है. कोऑर्डिनेशन इनफैक्ट ज़रूरी होता है. आप अकेले ऐसे टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते. सो दैट इज़ अ सुपर ऑर्डिनेट गोल. नाउ हियर वी हैव a match the following question. We will pause the video, we will solve it and then we will move on to the answer. Okay. सो यहाँ पे लिस्ट 1 में थ्योरीज दी हुई हैं और 2 में प्रोपोजिशंस दी हुई हैं. सो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है, अच्छा ये एक बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज इन द यूजीसी नेट क्वेश्चंस, इन द यूजीसी नेट पेपर, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर नॉलेज बट ऑल्सो अबाउट हाउ यू मैनेज टाइम. सो यूजीसी नेट का जो पेपर है वो सिर्फ नॉलेज के बारे में, इनफैक्ट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज़ नॉट जस्ट अबाउट द नॉलेज, सिर्फ नॉलेज की बात नहीं है, आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है. तो सही आंसर जानना भी जैसे इम्पॉर्टेंट है वैसे ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा सही आंसर नहीं है. सो एक एलिमिनेशन का एक प्रोसेस होता है. तो जैसे इसमें हम देखते हैं कि जो बी वाला पॉइंट है रिलेटिव डिप्राइवेशन, जो एक बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है कि आपको लगता है कि आप एक कंपैरिजन में किसी के पास ज़्यादा है कम है, आप खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करते हो फिर बोलते हो आपके पास कुछ नहीं है. सो दैट इज समथिंग सिमिलर इज बीइंग रिटन हियर. जो फोर्थ पॉइंट है कि हमारे लिस्ट 2 में कि फीलिंग ऑफ गेटिंग लेस देन व्हाट वन इज एंटाइटल्ड टू. आपको लगता है आपके साथ वाले किसी भी जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं उसके पास एक चीज़ है तो आपके पास भी वो होना चाहिए. तो जो सेकेंड जो बी पॉइंट है हमारा रिलेटिव डिप्राइवेशन वो फोर्थ पॉइंट ही होगा. तो अगर हम ऐसे करके जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट है उसको एलिमिनेट कर दें, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट पॉइंट में बी का आंसर फोर्थ है, तो ऐसे हम एलिमिनेट करके भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा, ऐसे आप किसी भी आंसर में इसमें तो फिर भी उतना क्लियर कट नहीं है, बट अगर आपको किसी क्वेश्चन में से क्लियर कट दिखता है और आपके पास टाइम कम है तो आई वुड सजेस्ट कि एलिमिनेट करके, जैसे इसमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा इसमें. तो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं. सो एलिमिनेशन कुड ऑल्सो वर्क हियर. सो वी सी दैट फॉर बी वी हैव फीलिंग ऑफ गेटिंग लेस देन व्हाट वन इज एंटाइटल्ड टू, दैट इज अ रिलेटिव डिप्राइवेशन. रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स में वी सी दैट as we studied earlier, even in the question earlier, we saw that there is competition of resources, there is scarcity of resources which creates a competition. So this is the second point. Third may we see social identity, which is identity, the first option, that is identity is formed by social comparison, categorization and identity, social identity. So these are the 3 points that come under social identity theory. So this is also easy. And the fourth point, तो थर्ड पॉइंट में सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, वो हमारे फर्स्ट जो लिस्ट 2 है उसमें फर्स्ट पॉइंट में मेंशन है. नाउ द फोर्थ ऑप्शन in the list 1 is social comparison, जिसमें we see that we compare oneself to others in ways that raise one's self-esteem. So basically us versus them का concept जो हमने बात की, आउट ग्रुप वर्सेस इन ग्रुप एक बन जाता है जिसमें हम कंपेयर करते हैं और अकॉर्डिंगली हमारे ग्रुप्स जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारा सेल्फ एस्टीम अकॉर्डिंगली बढ़ जाता है. सो दिस इज आवर सोशल कंपैरिजन. सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर है. नाउ I know it's we are hurrying into it a bit, but we don't really
want to extend the video anymore, so we'll try to finish it as fast as possible. Now जो 7 पॉइंट है उसमें पूछा है करेक्ट सीक्वेंस देने को उन स्टेजेस के जो रिलेशनशिप मेंटेनेंस में आते हैं अंडर द सोशल एक्सचेंज थ्योरी. So under the social exchange theory, certain stages were given for maintaining a relationship. What would be the correct sequence? So if you remember, we studied about costs and rewards. That was one concept under the social exchange theory by Watt and Kelly. But there was also a sequence of stages that we studied earlier. I hope you remember. So the correct answer here is B option, that is CABD. So there is sampling, then we have bargaining, then commitment, and finally institutionalization. So quickly we move to the 8th question. Okay. So which of the following is the correct explanation of outgroup homogeneity effect? तो जो outgroup homogeneity effect है वो इनमें से कौन सा सही डिस्क्रिप्शन होगा उसका. So we will pause the video and we will figure out the answer. So हमारा आंसर है सेकेंड, जिसमें कि हमें लगता है कि जो आउटग्रुप है, जो आउटग्रुप के मेंबर्स हैं वो लोग बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं आपस में एज कम्पेयर टू आवर इन ग्रुप मेंबर. सो वी बिलीव दैट द आउट ग्रुप मेंबर्स आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर, वे मोर दैन एज कम्पेयर टू आर इन ग्रुप मेंबर्स. So that is our outgroup homogeneity effect, and this could be because maybe we are not familiar with them, we are not so we are not familiar with them, हमें उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है आउट ग्रुप के बारे में, इसीलिए हमारे ऐसे परसेप्शंस बन जाते हैं. सो दिस कुड बी द रीज़न. सो दिस इज़ इट. आई एम अगेन आई अपोलोजाइज, मैंने बहुत जल्दी एंड कर दिया, बट द वीडियो वाज ऑलरेडी लॉन्ग, बहुत लंबा वीडियो बन चुका था तो हम और नहीं बनाना चाहते थे. सो वील रैप इट अप हियर. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग आवर क्लास. If you have any questions, any suggestions, please leave them in the comment box. We will try our best to reply as soon as possible. Please stay connected with us. We'll end the social psychology series soon. So thank you so much for studying with us again. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. प्लीज़ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें, और ताकि आपको आगे की जो वीडियोज़ आए उनके बारे में पता चल पाए. So thank you so much. Have a nice day.